Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, MS PowerPoint 2016. In this chapter, you will learn about Introduction to PowerPoint, Features of PowerPoint 2016, Starting PowerPoint 2016, Components of MS PowerPoint, Creating a new presentation, Adding text and placeholder, Creating presentation using templates, Saving a presentation, saving the changes in existing presentation, open an existing presentation, running a presentation, closing PowerPoint. Presentation software is an application software that is specifically designed to create a presentation of ideas. It makes use of text, pictures, clip arts, charts, tables, sound and animation effects to create the attractive slides which can present in the audience. User can also add audio and video clips to the presentation. Microsoft PowerPoint software is an integral part of Microsoft Office suite and was developed by Microsoft. It is used by the teachers and lecturers for teaching purposes, which is used to bind the interest of the listeners to the lecture being delivered. Other than teaching field, this method is also used in business and organizations to show the presentation of their product through the customers. Okay. अब देखिए presentation software आपका application software है जो कि आपको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए. ओके मतलब कि अ प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़. तो इसमें हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट का, पिक्चर्स का, क्लिप आर्ट्स का, चार्ट्स है, साउंड्स है, एनिमेशन इफेक्ट है, जिससे कि क्या होता है कि अट्रैक्टिव स्लाइड्स आप क्रिएट कर सकते हैं. ओके और अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए. राइट इसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स भी हम प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का एंड इसको भी डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. इसको टीचर्स लेक्चरर्स यूज़ करते हैं टीचिंग पर्पसेस के लिए, जिससे जो लिसनर्स का इंटरेस्ट उसमें बना हुआ रहता है. ओके इसके अलावा टीचिंग फील्ड के अलावा इस मेथड को बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए अपने कस्टमर्स को. ओके स्लाइड. अ स्लाइड इज़ अ पेज विच कैन बी क्रिएटेड टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक. स्लाइड एक्चुअली में आपका ना पेज होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. ओके फैक्ट फाइल. MS PowerPoint 2016 was first released on Microsoft Windows on 22nd September 2015. Microsoft PowerPoint 2016 को रिलीज़ किया गया था Microsoft Windows पे 2015 में on 22nd September. Presentation. A presentation is a collection of slides arranged in a systematic order that displays information along with graphics, sound and animation. Presentation आपका कलेक्शन होता है स्लाइड्स का जो आपके अरेंज होते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, साउंड या फिर एनिमेशन. नेक्स्ट स्लाइड शो. द स्लाइड्स आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस in the form of slideshow in which each slide is displayed one after the another on mouse click or after the time interval set by the user. अच्छा अब जो स्लाइड्स होती है ना आपकी स्लाइड शो में कहते हैं वो प्रेजेंटेड होती है ऑडियंस के सामने स्लाइड शो की फॉर्म में, मतलब जिसमें हर स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आपकी डिस्प्ले हो जाएगी जस्ट माउस क्लिक पे. ओके फीचर्स ऑफ PowerPoint 2016. PowerPoint Designer. When you insert an image in a slide, you will see that a design ideas pane appears at the right side of the window. This pane shows the various layouts for the image. You can select and click any layout. If you don't want to select any layout from the pane, just close the pane and create your own layout. देखिए जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं ना स्लाइड में तो आप क्या देखेंगे कि डिज़ाइन आइडियाज़ पेन अपीयर होता है विंडो के राइट साइड में. तो ये पेन जो है ये शो करता है इमेजेस के वेरियस लेआउट्स को. तो आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं किसी भी लेआउट पे. और अगर आप इन लेआउट में से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट पेन को क्लोज कीजिए और आप अपना खुद का लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट न्यू ऑफिस थीम्स. माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स न्यू 4 ऑफिस थीम्स इन PowerPoint. The 4 office themes are colorful, dark, gray, black and white. To change your office theme, go to file icon and click the drop down menu next to office theme. अच्छा अब इसके देखिए माइक्रोसॉफ्ट में आपके पास ना 4 ऑफिस थीम्स है PowerPoint में. तो आप इसमें से कोई भी जो 4 हैं आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं. ओके तो इसके लिए आपको क्या करना है ऑफिस थीम पे आप जाएंगे. अगर आपको अपनी ऑफिस थीम चेंज करनी है तो you'll go to the file account, then drop down menu पे आप क्लिक करेंगे. राइट Quick shape formats. When you draw shape in a slide, you
need not to waste time to create effects manually. It provides number of presets which will expand your color and formatting options. जब आप शेप ड्रॉ करें ना स्लाइड में, तो आपको ज़रूरी नहीं अपना टाइम आप वेस्ट करें, मतलब आप उसको मैनुअली आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास प्री सेट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके. Morph transition. A new transition type is added in PowerPoint which is used to automatically animate, move and emphasize the object in slides. अब ये नया ट्रांजिशन है जो आपके पावरपॉइंट में ऐड हुआ है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एनिमेट करता है, एम्फेसाइज करता है, मूव करता है ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड्स में. New chart types. Office 2016 provides 6 new chart types in Word, Excel and PowerPoint which includes tree map, sunburst, histogram, box and whisker, waterfall and funnel. Okay. अब इसमें आपके पास ना 6 न्यू चार्ट टाइप्स हैं Word के. ओके. जो आपके जिनमें आपके दिए गए हैं सारे नाम, राइट. नेक्स्ट, collaboration and sharing. MS Office 2016 provides collaboration and sharing feature in all its programs. You can share your presentation with other people on SharePoint, OneDrive or other online location. To use this facility, you need to choose the share option present on the top right corner of the ribbon. Okay. अच्छा ये देखिए, ये आपका जो MS Office 2016 है ना, ये collaboration भी provide करता है और sharing features भी provide करता है. आप अपने प्रेजेंटेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर पॉइंट पे, वन ड्राइव पे या फिर दूसरे ऑनलाइन लोकेशन पे, राइट. इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए आपको शेयर ऑप्शन चूज करना पड़ता है जो आपके रिबन के राइट टॉप राइट कॉर्नर पे है. ओके. ओके. फैक्ट फाइल. .ppt is the file format used by Microsoft PowerPoint presentation software. The full form of PPT is parts per trillion. Okay. ये .ppt है ना, फाइल फॉर्मेट होता है जो कि यूज़ किया जाता है बाय माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर ट्रिलियन. Starting PowerPoint 2016. To start working with PowerPoint, you need to open this application software. To do so, follow the given steps. 1. Click on Start button. 2. Select the PowerPoint on the right pane by clicking on it. 3. Or go to Start All Apps PowerPoint option. 4. A PowerPoint window opens. 5. Click on Blank Presentation. 6. A new blank presentation opens. Title Presentation 1. ओके. अब आपको देखिए पावर पॉइंट को ओपन करना है. कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे और फिर यहाँ से पावर पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो, स्टार्ट देन ऑल एप्स एंड पावर पॉइंट ऑप्शन. ओके. अब देखिए पावर पॉइंट विंडो आपकी ओपन हो गई. ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपकी ओपन होगी जिसका टाइटल देखिए लिखा है प्रेजेंटेशन 1. ओके. और आपके पास ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इस तरह से आपका जो है ओपन हो जाएगा. ओके. तो देखिए ये जो स्क्रीन पे आ रहा है आपका, दिस इज़ फाइल मेन्यू. देन उसके बगल में आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार जो आपका ये प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ है, देन आपके पास टैब्स हैं, देन योर राइट में रिबन, देन नीचे प्लेस होल्डर ये जो आपके पास लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, देन आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स है, दिस इज अ नेविगेशन पेन, स्टेटस बार, दिस इज अ स्लाइड्स पेन, व्यू बटन्स एंड ये जूम स्लाइडर है आपके पास. ओके. सो ये आपके कंपोनेंट्स है MS PowerPoint के. Okay, components of MS PowerPoint. The various components of MS PowerPoint 2000 window are explained below. Title bar. Title bar is the top bar of MS PowerPoint window which displays the title of the presentation. It also contains 3 buttons: minimize, maximize and close button. 2. Quick access toolbar. Quick access toolbar is present in the left corner of the title bar. It contains those options which you use very often like save, undo, redo and other commands. You can also place this toolbar in the ribbon for this. A. Click on the drop down arrow available at the end of the quick access toolbar. B. Click on the show below the ribbon option. Okay. अब components जो है MS PowerPoint के उनमें से आपके पास टाइटल बार आपका टॉप बार होता है MS PowerPoint का, जो कि प्रेजेंटेशन के टाइटल को डिस्प्ले करता है. इसमें 3 बटन आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार जो आपके टाइटल बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है. इसमें वो ऑप्शंस होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे अंडू है, रीडू है, सेव है या दूसरी कमांड्स हैं. आप इस टूल बार को रिबन में भी प्लेस कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, आपके पास ये जो ड्रॉप डाउन एरो अवेलेबल है ना क्विक एक्सेस टूल बार के एंड में, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे शो बिलो द रिबन ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट फाइल मेन्यू. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू,
will open a list of options using which you can create a new presentation. Open an existing presentation, save or print it in other options. Ribbon. The ribbon is located at the top area of the document. It displays several tabs such as File, Home, Insert, Design, Transitions, Animations, etc. Each tab contains commands which are organized into different groups. देखो फाइल मेन्यू क्या है, फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो इसमें आपके पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आते हैं जिसकी हेल्प से आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एंड इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस भी होते हैं. ओके अब रिबन जो है आपके डॉक्यूमेंट के टॉप एरिया पे लोकेटेड है. इसमें बहुत सारे टैब्स हैं आपके, जैसे कि आपके पास फाइल है, होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन एक्सेट्रा. हर टैब में कमांड्स होती हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में फिर आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. ओके Slides pane. It's a blank area present in the middle of the window. It is an area in which user works and designs the slides. Navigation pane. Navigation pane is present on the left side of the window in which you can see the thumbnails of all the slides. You can add, delete, rearrange and create a duplicate of the slides here. When you click on a slide, its full view can be seen in the slide pane. देखिए स्लाइड पेन क्या होता है, ये ब्लैंक एरिया होता है जो आपके विंडो के मिडल पे प्रेजेंट होता है. तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे यूज़र काम करता है एंड स्लाइड्स को डिज़ाइन करता है. नेविगेशन पेन जो है विंडो के लेफ्ट साइड में होता है जिसमें आप सारे स्लाइड्स के थंबनेल्स देख सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, स्लाइड के डुप्लीकेट को भी क्रिएट कर सकते हैं. तो जब आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे इसका फुल व्यू आप स्लाइड पेन पे देख सकते हैं. Notes pane. It is placed right below the slides area. The note pane provides a space to add notes to the current slide. It is also known as speaker's note. अच्छा notes pane आपका ना ये आपका होता है राइट पे प्लेस्ड होता है स्लाइड्स एरिया के नीचे. तो जो नोट पेन है वो स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप नोट्स ऐड करें करंट स्लाइड में. इसको स्पीकर्स नोट भी कहा जाता है. नेक्स्ट view buttons. View buttons are available at the bottom of the window which can be used to view the slides in different formats like notes, normal, slide sorter, reading and slideshow. तो व्यू बटन्स आपके अवेलेबल होते हैं विंडो के बॉटम में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं स्लाइड्स को व्यू करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि नोट्स है या स्लाइड सॉर्टर है, रीडिंग है, स्लाइड शो. नेक्स्ट जूम स्लाइडर. जूम स्लाइडर इज यूज टू जूम इन और आउट द स्लाइड बाय मूविंग द स्लाइडर. ओके आपको स्लाइडर को जूम इन और जूम आउट करना है तो इसको आप स्लाइडर को मूव कर सकते हैं. राइट. प्लेस होल्डर. इन स्लाइड पेन यू कैन सी डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इन विच यू कैन टाइप टेक्स्ट, ऐड इमेजेस एंड अदर ग्राफिक्स. दीज बॉक्सेस आर नोन एज प्लेस होल्डर्स. प्लेस होल्डर्स आपकी कौन से बॉक्सेस हैं, आपके डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक्स ऐड ऑन कर सकते हैं. ओके. क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. टू क्रिएट अ न्यू PowerPoint presentation, follow the given steps. 1. Go to File menu. 2. Click on New option. 3. Click on Blank Presentation. 4. A new blank presentation window opens. चलिए हम एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं. कैसे करेंगे? ओके सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू पे, देन विल क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन और देखिए आपकी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विंडो ओपन हो चुकी है ना. Adding text in placeholder. When you create a new presentation, a default placeholder appears in slide pane. 1. Click to add title placeholder. The placeholder gets selected and a cursor appears in it. Now you can type some text in it. 2. Now click outside the text box. You will notice the entered text appears on the slide in the slide pane. 3. Similarly, click to add subtitle placeholder. A cursor appears in it and you can type some text. Click outside the placeholder and see the text appears on the slide. Okay. अब आपको देखिए क्या करना है, आपको जो प्लेस होल्डर है उसमें टेक्स्ट को ऐड करना है. तो क्या करेंगे देखिए. ओके यहाँ पे लिखा है ना आपका क्लिक टू ऐड टाइटल. राइट. आप इस पर क्लिक कीजिए. ओके अभी आपका सिलेक्ट हो गया है. अब इसमें कर्सर आ रहा है. अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं. ओके आप इस बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे. आप देखिए टेक्स्ट आपका आ गया ना जो आपने टेक्स्ट एंटर किया था. आप देखिए इसके बाद आप करेंगे क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे. कर्सर आ गया है. अब यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपनी चॉइस का. फिर प्लेस होल्डर के बाद क्लिक करेंगे और देखिए टेक्स्ट आपका स्लाइड में अपीयर हो रहा है ना. नेक्स्ट
Creating presentation using templates. There are many built-in templates in MS PowerPoint 2016 which can be used to create quick presentation. You can select any template of your choice which saves lot of time and effort to start a new presentation. You can also modify the templates and add your own contents, pictures, audio, etc. देखिए बहुत सारे ना बिल्ट इन टेम्पलेट्स आपके MS PowerPoint 2016 में जिससे कि हम क्विक प्रेजेंटेशन को अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके तो आप अपनी चॉइस का जैसे कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा, आपका एफर्ट सेव होगा. ओके आप टेम्पलेट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपना खुद का कंटेंट, पिक्चर या ऑडियो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. ओके तो कैसे करेंगे से पहले हम देखते हैं फैक्ट फाइल को, फिर उसके बाद हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे. Fact file. A template is a blueprint of slide which contains layout, theme, colors, theme effects, background styles, etc. Template आपका ना blueprint होता है स्लाइड का जिसमें आपका layout होता है, theme colors होता है, effects होता है, background style होते हैं. Next fact file. You can also create your own custom template which can be stored and used later. आप खुद का अपना customized template भी create कर सकते हैं जिसे आप later on use कर सकते हैं. Okay? चलिए. Follow the given steps to create a new presentation using templates. 1. Click on File menu. 2. Click on New option. 3. A window opens containing various templates in the form of thumbnails. 4. Select any template by clicking on it. 5. It will display the various layout options for the template you have selected. 6. Select the layout of your choice and click Create button. Your presentation will be created with the selected template. Okay. अब आपको देखिए क्या करना है, आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है बट टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं. आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे, देन न्यू ऑप्शन. अब देखिए विंडो में देखिए आपको बहुत सारी विंडो ओपन हो रही है जिसमें बहुत सारे आपके नेल्स की फॉर्म में टेम्पलेट्स हैं. ओके कोई भी टेम्पलेट जिसमें से आप चूज़ करेंगे. ओके नाउ अब ये डिस्प्ले करेगा वेरियस लेआउट्स ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट किए हैं. फिर आप अपनी चॉइस का लेआउट सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करेंगे क्रिएट बटन और देखिए आपकी प्रेजेंटेशन आपकी क्रिएट हो गई ना जो आपने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था उसके साथ. ओके सेविंग अ प्रेजेंटेशन. आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यू नीड टू सेव इट so that you can use it in future. Take the following steps to create a presentation. 1. Click on File menu. 2. Click on Save as option. 3. Click on Browse option. 4. By this, a Save as dialog box opens. 5. Type the name of the file and click Save button. Okay. अब आप क्या चाहते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन आपने तो बना ली है, अब आपको इसको सेव भी करना है ताकि आप इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन सेव ऑप्शन, देन ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अब देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब इसमें आप कुछ भी नाम टाइप कीजिए और फिर हम क्लिक करेंगे सेव बटन पे और हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी. ओके फैक्ट फाइल. If you use save as option for an existing presentation, you can create a duplicate file with the new name. अगर आप existing presentation के लिए आप save as option का use करते हैं तो आप एक duplicate file create कर सकते हैं with a new name. Okay? Next, save the changes in existing presentation. To save the changes in an existing document, take the following steps. 1. Click on File menu. 2. Click on Save button. The changes will be saved in the save file. अच्छा देखिए अब आप चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसमें जो आपने चेंजेस किए उसको सेव करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगैन आप जाएंगे फाइल मेन्यू पे, फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे. अब जो है चेंजेस आपके सेम फाइल में सेव हो जाएंगे. ओके ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. टू ओपन एन ऑलरेडी क्रिएटेड प्रेजेंटेशन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. 1. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. 2. क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन. 3. क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन. 4. An open dialog box opens. 5. Now, type the name of the file or select the file which you want to open. 6. Click on Open button. 7. The presentation file will get open. Okay. अब आप चाहते हैं कि आप अपनी existing presentation को open करना, तो क्या करेंगे आप, फाइल पे जाएंगे, then open, then browse, इसके बाद open dialog box open हो गया आपका. नाउ जो भी आप फाइल क्लिक करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसका नाम या तो सिलेक्ट करेंगे या फिर आप टाइप करेंगे, देन ओपन बटन और देखिए प्रेजेंटेशन फाइल आपकी ओपन हो जाएगी. ओके रनिंग अ प्रेजेंटेशन. आफ्टर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यू कैन रन इट टू
view the slideshow. 1. Click on slideshow tab. 2. Click on from beginning. 3. The slideshow begins from the first slide. 4. Or click on F5 function key from the keyboard to start the slideshow. Okay. अब प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद आप चाहते हैं उसका स्लाइड शो रन करना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे. आप जो स्लाइड है आपका वो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी. ओके. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो F5 की फंक्शन की है कीबोर्ड से इसे प्रेस करेंगे और आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, क्लोजिंग पावर पॉइंट. टू क्लोज अ पावर पॉइंट एप्लीकेशन, 1. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन. अब आपको अपनी एप्लीकेशन बंद करनी है तो आप क्या करेंगे? सिंपली यू विल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन आपके पास ये क्लोज ऑप्शन. ओके. Summary points. Microsoft PowerPoint software is an integral part of Microsoft Office suite and was developed by Microsoft. Presentation graphics is a software application which is designed to present the graphics information in the form of slideshow. A slide is a page which can be created to give information on a topic. Microsoft provides new 4 Office themes in PowerPoint. They include colorful, dark gray, black and white. Office 2016 provides 6 new chart types in Word, Excel and PowerPoint, which includes tree map, sunburst, histogram, box and whisker, waterfall and funnel. You can share your presentation with other people on SharePoint, OneDrive or other online location. Navigation pane is present on the left side of the window in which you can see the thumbnails of all the slides. MS PowerPoint 2016 provides with many inbuilt templates which can be used to create quick presentation. Children, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा. अब चैप्टर की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे आप लोग.